Hello, namaste, and we're just going to take a couple of minutes before we get started with the Enter Trainer show, and it's a tribute to the great Mohammad Rafi Saab. So we're just going to take a couple of minutes, and I'll be on. Meanwhile, you can grab your cup of tea, you can have a pick up a cup of coffee if you want. I just want to chill, relax, sit back and relax, and enjoy the spirit of Mohammad Rafi as it comes alive over the next 20 to 30 minutes. It's going to be very, very exciting. I can promise you that. I'm so delighted to be hosting the Enter Trainer show where I'm going to pay a tribute to the great Mohammad Rafi Saab. So if you are there with me, if you have joined me on the show right now, you could just put a hi, you can say hello to me, and I would know that you are with me. So that would be wonderful. And it will be really nice if you can be with me over the next few minutes and we can have a great time together, right? So just take a minute or so before we can get started with the Entertainer show. So hi Venugopal, hi, thank you so much. Thank you so much for being there with me, and it's very encouraging to have a little audience with you. So when you're doing this kind of a program, especially on a Saturday evening, the whole idea is to regale you with some wonderful insights about a great human being, a great personality. Also sing a few songs for all of you, right? So it's going to be a lot of fun, for sure. Yes, Leena ji, hello, how are you? Nice to see you here. And I just want a little clarification. Can you hear my voice? Is it coming through clearly? Are you comfortably receiving my voice? If any of you can just quickly reply to that. Can just put yes. Yes, Venugopal, Leena ji, anybody could just quickly respond. Well, so just a minute or so, and we are going to be very much on the way now. Yeah, I just got a message. Yeah, right. So we take a minute or so. One more minute, just give people a little bit of time to join. And then we will be on our way. So right. Okay, so let's count. Let the countdown begin, and so we're going to start in just the next few seconds, and it's going to be. I'm going to try and regale you on this Saturday evening and make this a very, very memorable 20 to 30 minutes that we're going to spend together. Okay, good evening and namaste. My name is Hariharan Iyer, the Enter Trainer, and I welcome you to the Enter Trainer show. Now, this is a new initiative from my side where I'm going to bring alive some very entertaining aspects of life, which are going to not only provide us with some learning, but also they're going to provide us with some entertainment, as the whole tagline, my trademark suggests, the entertainer. That's what this show is all about. I'm going to try and bring to you some hidden talents by the grace of God, to share them with you, and hopefully I'll be able to bring in some cheer, some smile, and happiness into your life. And what are we going to do today? Oh, well, it's a dream come true for me in a way. I'm going to pay tribute to my childhood hero, someone I've grown up listening to all my life, and someone who lives inside me. I've never met this gentleman in my life because he left this world but left behind his divine voice when I was just 11 years old in the year 1980.
and I've never had the opportunity to meet this gentleman. But today I'm going to pay tribute to somebody whom I've never met, but it never feels like none of us ever met him. The great Mohammed Rafi Saab. What a human being! What a great singer! He was called the voice of God, and his lines, which he sang for film which starred Shami Kapoor, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं. Immortal lines from an immortal singer, and very truly हम जब भी ये गाना सुनते हैं, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, मोहम्मद रफ़ी साहब को भूलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. मोहम्मद रफ़ी साहब हमारे अंदर बसते हैं. उनकी आवाज़, उनका पर्सनैलिटी, उनकी फितरत, उनका कैरेक्टर, उनका जीवन, वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में बसता है. एंड ही इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडियन लाइफ, यू नो, इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज कॉन्शियसनेस. हम बचपन में ऑल इंडिया रेडियो में सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक हमारे जो बॉलीवुड के बड़े बड़े सिंगर्स थे, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, मुकेश, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इन लोगों को सुनते थे. इनको सुनकर आज हम बड़े हुए हैं और इनकी आवाज़ हमारे कानों में जिंदगी भर गूंजती रहेगी. What makes Mohammed Rafi very special? Mohammed Rafi, it's not only the voice, it's not only the divine talent that Mohammed Rafi Saab possessed. What is most important to understand about Mohammed Rafi Saab is that he was a great person, he was a great human being. And there are a lot of things for people like us to learn from. No trace of ego in a man who was such a superstar in his life, and he ruled the Indian film music industry for 40 years. You know, he started singing pre-partition, and then he was there right almost at the top till he unfortunately died very young at less than 55 years. But he left such a legacy behind us. So he was a great human being. There is a story about Mohammed Rafi Saab that once he was traveling with one of the co-singers, and there are a lot of people asking for autographs, you know, they're surrounding his car and asking for autographs. Rafi Saab was a very soft-spoken person. So he just asked the singer, क्या मांग रहे हैं लोग, क्या चाहिए इनको? So the singer told him, I think that was Mahendra Kapoor, and he told him that रफ़ी साहब ये आपसे आपका सिग्नेचर मांग रहे हैं, ऑटोग्राफ मांग रहे हैं. बोला क्यों मांग रहे हैं ऑटोग्राफ? बोलते ये मतलब आप बड़ी हस्ती हैं तो आप साइन करेंगे, इनको अच्छा लगेगा. तो रफ़ी साहब इन ऑल इज इनोसेंस सेड, एक काम करो ना, आप ही साइन कर दो मेरे बिहाफ पे, खुश हो जाएंगे वो लोग. So he had that kind of innocence in him. There is another story about Rafi Saab that one day he went home very excited, and his family asked him, क्या हुआ आज? What are you so excited today? He said, आज पता है आपको मैं किससे मिला? बोला आप किससे मिले? तो उन्होंने बोला आज मैं अमिताभ बच्चन साहब से मिला. अब एक ऐसी हस्ती जो खुद इतने बड़े इंसान है, वो इतना खुशी जता रहे हैं कि वो अमिताभ बच्चन साहब से. ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन साहब उस जमाने में बहुत बड़े एक्टर थे, आज भी है, तो उनसे मिलना तो बनता है, लेकिन रफी साहब खुद कितने बड़ी हस्ती थे. सो द ब्यूटी ऑफ द लाइफ ऑफ मोहम्मद रफी is not just that he was such a great singer. The beauty of the life of Mohammed Rafi is that fundamentally he was a great human being. एक बार वो रिकॉर्डिंग में देरी से पहुंचे तो उन्होंने सभी को अपोलोजाइज किया, म्यूजिक डायरेक्टर को अपोलोजाइज किया, एक एक म्यूजिशियन को जाके अपोलोजाइज किया. और एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां पे स्टार्स लोग लेट आते हैं, वेट करते रहते हैं डायरेक्टर और क्रू, और उनको कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन रफी साहब एक ऐसे इंसान जो इतना हम्बल, इतना विनम्र, इतना ह्यूमिलिटी. आप कितने भी यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए,
रफी साहब के बारे में लोग इतनी तारीफें करते हैं, उनके को सिंगर्स, नए सिंगर्स, एक्टर्स, कितने लोगों का करियर उन्होंने बनाया बिकॉज ऑफ हिज प्लेबैक सिंगिंग। कितने लोग रफी साहब की आवाज से पहचानेंगे अपने करियर में। राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, शमी कपूर, जॉय मुखर्जी, विश्वजीत। पुकारता चला हूं मैं गली गली बहार की, बस एक छाव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारदा चला हूं मैं। अब एक खास बात क्या है रफी साहब की कि जब आप उस गाने को सुनते हो, जैसे पुकारता चला गया, चला हूं मैं, या कोई भी और गाना, कोई भी एक्टर का, तो वो एक्टर की छवि आपके सामने आती है। उस एक्टर की छवि आपके सामने आती है, क्योंकि रफी साहब ऐसे गाते थे जैसे वो खुद वो कैरेक्टर है। और ये बहुत खास बात होती थी हमारे जो पुराने सिंगर्स थे, लता जी हो, आशा जी हो, मुकेश साहब हो। मुकेश वॉज कॉल्ड द वॉइस ऑफ राज कपूर। किशोर कुमार हो, और मजे की बात क्या है, किशोर कुमार और रफी साहब ये दोनों ने देवानंद के लिए भी गाना गाए हैं, धर्मेंद्र के लिए भी गाना गाए हैं, राजेश खन्ना के लिए भी गाना गाए हैं। लेकिन जब राजेश खन्ना अगर रफी साहब की आवाज में गा रहे हैं अपने कैरेक्टर में, तो आप जब उस रफी साहब का गाना सुनते हैं तभी भी राजेश खन्ना आपके दिमाग में आता है, और जब भी किशोर कुमार का भी आप कोई गाना सुनते हैं जो राजेश खन्ना पे पिक्चराइज हुआ हो, तभी भी राजेश खन्ना आपके सामने आते हैं। तो इन लोगों में एक खास बात होती थी कि वो सिर्फ गाना नहीं गाते थे, उस सिचुएशन को समझते थे और उस कैरेक्टर में घुसकर गाते थे। तो उन क्षणों के लिए उस गाने के दौरान रफी साहब बन जाते थे शमी कपूर, उनकी हरकतें करते थे याहू। वो जो गाना गाया उन्होंने, चाहे मुझे कोई जंगली कहे, शमी कपूर साहब को यकीन नहीं हुआ कि किस तरीके से गाया, ऐसा लग रहा है मैं खुद गा रहा हूं। मतलब उस तरीके से उस छवि में घुसकर रफी साहब ने वो गाना गाया शमी कपूर के लिए, और एक बहुत जबरदस्त पैरिंग था वो, एक कॉम्बिनेशन। जैसे क्रिकेट में पार्टनरशिप्स होते हैं, प्लेबैक सिंगिंग इंडस्ट्री में बड़े पार्टनरशिप्स होते हैं। रफी साहब, शमी कपूर, शंकर जयकिशन, रफी साहब आशा भोसले, रफी साहब लता मंगेशकर। तो ये एक ऐसा दौर था म्यूजिक का जहां पर करियर्स एक्टर का म्यूजिक के वजह से बनता था। आजकल ऐसा है कि आपको लिरिक्स पढ़ने पड़ते हैं, देखना पड़ता है कि गा क्या रहे हैं। चलो आज का म्यूजिक का अपना एक स्टाइल है, वो अपने दौर के लिए ठीक है, लेकिन उस जमाने का जो म्यूजिक होता 1950s, 60s, 70s, that music not only made the careers of singers, those singers made the careers of so many actors, like I have already named a few of them. और वो नए एक्टर हो, पुराने एक्टर हो, वो छवि उस एक्टर की आती थी जब भी आप रफी साहब की आवाज में वो गाना सुनते थे। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से। राजेंद्र कुमार पर ये इमॉर्टल गाना, राजेंद्र कुमार और वहीदा रहमान पर इमॉर्टल गाना ये पिक्चराइज किया गया। सच ब्यूटिफुल लाइन्स, आई थिंक रिटन बाय राजेंद्र किशन, एंड सच ब्यूटिफुल, सच अमेजिंग सिंगिंग बाय मोहम्मद रफी साहब। सो चलिए हम थोड़ा सा मेडली करते हैं और आपको हर एक एक्टर का एक थोड़ा सा फ्लेवर देने की मैं कोशिश करता हूँ, और हम उस थोड़ा सा उस अंदाज को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको समझना यह है कि रफी साहब का रेंज, माशाल्लाह, व्हाट रेंज। आई मीन he could sing from this tone to that tone. He could just raise his level like nobody else could. One was the tone of and the voice pitch and the modulation. The second was
his orientation in terms of classical singing. मधुबन में राधिका नाचे रे, to a very very modern song like कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा, ओ देखो तुमसे अच्छा कौन है. You see the range from where he goes to where he comes to, और बीच में कोई सैड सॉन्ग, कोई पैथोस, एक इमोशन. मन रे तू काहे नदीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे, ओ मन रे तू काहे नदीर धरे. प्रदीप कुमार पर ये चित्रलेखा मूवी पे पिक्चराइज किया गया इमॉर्टल सॉन्ग ऑफ रफी साहब. और ये बहुत ही यादगार गाना है. इसके कई कारण हो सकते हैं, पिक्चराइजेशन, द वे ये सॉन्ग. और उस गाने को अगर आप सुनेंगे, आप यूट्यूब पे उसको गाने को देखेंगे, तो आप उस गाने की फीलिंग को एब्जॉर्ब कर पाएंगे. इतना खूबसूरत तरीके से रफ़ी साहब ने अपने इमोशंस को इस गाने में रखा है. तो एक है रफ़ी साहब का क्लासिकल सिंगिंग, एक उनका पैथोस, एक उनका जॉयफुल सिंगिंग, एक है उनका रोमांस, एक है उनका मस्ती भरा गाना. वो कोई भी गाने को एक अलग ही अपने अंदाज में गाते थे, उसमें डूब जाते थे. एंड सच अ सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, बट द मोमेंट ही स्टार्टेड सिंगिंग, ही यूज्ड टू एलिवेट द होल एनवायरमेंट अराउंड हिम. ऐसा लगता था खुदा की आवाज है, क्या गाते हैं. तो चलिए एक एक फ्लेवर हम उठाते हैं. मेरा बचपन का एक बहुत ही फेवरेट गाना, मधुबन में राधिका नाचे रे. मैं अनट्रेन्ड सिंगर हूं, बाथरूम सिंगर हूं, तो मेरा भूल चूक को थोड़ा माफ करना, लेकिन ये थोड़ा क्लासिकल गाना है. इसके 2-4 लाइन मैं आपको सुनाना चाहूंगा, जो मेरे फेवरेट सेक्शंस है यहाँ पर. और मेरे ख्याल से दिलीप कुमार साहब पर पिक्चराइज किया गया. मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर के मुरलिया बाज रे. मधुबन में राधिका नाचे रे, मृदंग बाजे है तिरकट तुम ताता, मृदंग बाजे तिरकट तुम ताता, नादिर का छुम छुम ततई ततई तत छुम छुम छननन छुम छुम छननन, क्रांद क्रांद क्रांदा दा दा दा. मधुबन में राधिका नाचे रे, ओ दे नादर दर तानी दाना रे धीम धीम ताना ना नादर दर तानी दाना रे धीम धीम ताना ना नादर दर तानी दाना रे धीम ताना ना नादर दर तानी दानी दा, ओ दे ताना दर दर ताना दर दर तुम नादर दर दर नादर दर दर नादर दर दर धीम ताना नादर दर तानी दानी दा, ओ दे नादर दर तानी दा, ओ दे नादर दर तानी दाना रे धीम ताना रे धीम ताना रे धीम. वाह वाह, क्या खूबसूरत गाना. नौशाद साहब का म्यूजिक. ये गाने को आप दूरदर्शन पे हम देखते थे जब लाइव परफॉर्मेंस देते थे रफ़ी साहब. मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा. तो चलिए एक अलग जॉनर पे चलते हैं. एक अलग एक्टर, एक रोमांटिक टच देते हैं और रफ़ी साहब को एक ट्रिब्यूट देते हैं. बाहर फिर भी आएंगे, एक बहुत ही एक पिक्चर बनी थी 1966 में. फिल्म बहुत नहीं चली, लेकिन ओपी नैयर साहब का म्यूजिक और ये गाना जो धर्मेंद्र पर पिक्चराइज हुआ है, वन मोर ऑफ माय चाइल्डहुड हीरोज, धर्म पाजी, उन पर ये गाना पिक्चराइज हुआ है. और कितना खूबसूरत गाना है और कितनी खूबसूरती से रफ़ी साहब ने इसको गाया है. आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है. आपकी
निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। जिस तरीके से रफी साहब ने वो गया तो गया है, गया गया है, वो एक रफी साहब ही गा सकते हैं। उनका एक अलग झलका छलकाए जान, आइए आप भी होठों के दाम, इस तरीके का कुछ लाइन्स है। लेकिन आप इस गाने को सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा सही में शराब है क्या रफी साहब के हाथ में। इस तरीके से उस इमोशंस को, उस कैरेक्टर को ही यूज टू ब्रिंग दैट अलाइव। तो चलिए, हमने प्रदीप कुमार जी का एक गाना सुना, मन रे काहे धीर न धरे, मधुबन में राधिका नाचे रे दिलीप कुमार साहब। धर्मेंद्र का भी हमने एक गाना सुना, आपके हसीन रुख पर आज नया नूर है। अब चलते हैं मेरा एक बहुत ही फेवरेट गाना, सुनील दत्त साहब पे पिक्चराइज किया गया, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम डले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों पे तले, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये रोमांटिक लोगों के लिए नेशनल एंथम है एक तरीके का, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मरना इन्हीं पलकों के। रफी साहब में एक और उनका जो एक वर्सेटैलिटी था, वो पेट्रियाटिक सॉन्ग्स में भी था। हकीकत के गाने ले लीजिए, या जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा। उन्होंने एक बहुत ही दर्द भरा गाना गाया है, विच इज पिक्चराइज्ड ऑन द फ्यूनरल प्रोसेशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू। मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मैंने एक फूल जो सीने पे वो गाने में जो पैथोस है, मेरी आवाज सुनो, और वो जिस तरीके से वो पिक्चराइज हुआ है और बैकग्राउंड में रफी साहब की आवाज आ रही है और जिस तरीके से वो गा रहे हैं, you can feel the emotion and the pain in the way Rafi Saab has sung that song. उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा है। बस और कुछ मिनट और, रफी साहब के बारे में हम जितना बात करें वो कम है। ऐसा भी एक कहानी है उनके बारे में कि एक म्यूजिशियन को पैसे की तकलीफ थी और रफी साहब नहीं चाहते थे कि उनको पता चले कि कौन उनकी मदद कर रहा है, फिर वो शायद वो पैसा लेते नहीं, और उनकी माँ का ट्रीटमेंट के लिए उनको पैसे की जरूरत थी। कई महीनों तक या कई महीनों तक शायद वो हर महीना एक पर्टिकुलर तारीख पे मनी ऑर्डर मिल जाता था, तो इनको पता नहीं चलता था कि किसने भेजा है। फिर एक दिन अचानक वो मनी ऑर्डर आया नहीं और इनको पता चला कि कुछ दिन पहले ही रफी साहब गुजर गए। तब उनको पता चला कि रफी साहब ये पैसा भेज रहे थे। इस तरीके का शख्सियत, इस तरीके का एक इंसान हमको बहुत कुछ सिखा जाते हैं कि सक्सेस विदाउट ह्यूमिलिटी हैज नो मीनिंग इन लाइफ। और इतने एक हम्बल इंसान। शो के आखिर में एक आखिरी गाना मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं, पिक्चराइज्ड ऑन संजय खान। अब देखिए किस तरीके के एक्टर्स अपने अपने करियर में आगे बढ़ते गए रफी साहब की वजह से, और कितने उनके गाने इमॉर्टल हुए, राइट फ्रॉम दिलीप कुमार, प्रदीप कुमार टू संजय खान टू धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, न्यू एक्टर्स।
So Rafi Saab made a big contribution to many careers. Can you and me also make a contribution to people's lives? वादिया मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे वादिया मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे वादिया मेरा दामन जब से मिलने लगी मुझसे राहें मेरी जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी चांद सूरज बनी दो निगाहें मेरी तुम कहीं भी रहो नजर आओगे वादिया मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे वादिया मेरा दामन रफी साहब तुम कहीं भी रहो तुम नजर आओगे और आपके गाने आपकी आवाज आप कभी मर ही नहीं सकते रफी साहब कभी नहीं मर सकते रफी साहब जिंदा है रहेंगे लिविंग लेजेंड बनकर रहेंगे पूरे जीवन में और सदियों तक पीढ़ियों तक generations together will get inspiration from this fantastic legacy of songs that is created by Mohammad Rafi. This was a very humble, small tribute in the inaugural edition of the Entertainer Show. I hope you enjoyed. उम्मीद करता आपको मज़ा आया और बस इसी तरीके से रफ़ी साहब के गानों को गुनगुनाते रहिए और मेरे साथ गाते चलिए बंदा परवर थाम लो जिगर बन के प्यार फिर आया हूँ कुदरत में आपकी हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ ओहो ओहो आ ओहो ओहो जिसकी तड़प से रुख पे तुम्हारे आया निखार गजब का जिसकी तड़प से रुख पे तुम्हारे आया निखार गजब का जिसके लहू से और भी चमका रंग तुम्हारे लब का है खुसले जंजीर बने और भी तुम तस्वीर बने आईना दिलदार का नजराना प्यार का फिर वही दिल लाया हूं इसी तरीके से आपके समक्ष फिर किसी और आर्टिस्ट किसी और प्लेबैक सिंगर कोई और महान बॉलीवुड स्टार या क्रिकेट स्टार कोई भी हो सकता है मैं आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत करूंगा तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच for joining me today, for having joined me today on the Entertainer Show, a tribute to Mohammad Rafi Saab. God bless all of you and take good care of yourself. Thank you very much.